Okay, in the unit 5, we have the one XML chapter is there. Okay, what is XML? Basic XML we have to learn. Then the second is security fundamental. Then third one is ASP.NET Edges. So today we will start with the XML. Okay, so what is XML? The full form of XML is extensive markup language. Okay, the full form of XML is extensive markup language. You have to remember this. Okay, because I will ask in MCQ. The extensive markup language. Extensive spelling, check the spelling E. Okay, extensive markup language. I will ask the question like what is the full form of XML. Okay, 4 options given to you. Okay, तो small थोड़ा mistake कुछ होगा spelling में extensive लिखा है कि E लिखा है कि क्या है, ठीक है. So this is the correct way of writing the extensive spelling. Extensive, okay, EXTENSIVE, extensive markup language. Okay, the extensive markup language has a very important role in web applications. .NET has given enough space for XML classes in its .NET framework. Okay, there are already XML class is there. Okay, just know for the database. Okay, there is edu.NET concept is there. Okay, we have to import some header files. Okay, some वैसे XML facilities provided by the .NET. What is XML? XML is like database. Okay, you can store the information XML also. Okay, what is XML? Extensive markup language. You can create your own tags, and in that tags, within that tags, you can store the information. Okay, if information XML tags में store कर सकते हैं. XML is like database. Okay, but in database we are storing the information in tables and columns, and but XML can work in any platform. Okay, in sometimes the information are passed using the XML. Okay, if we are passing the information through the XML text, the XML can be read by any applications. Okay, any type of languages. Python also can understand XML. .NET, Java, all languages can understand the XML. Okay, so XML is independent, platform independent. Okay, so if you want to web services also understand the XML languages. Okay, so the main class working with XML data as follows. Okay, XML means in XML we can create our own text. हम लोग हमारा text create कर सकते हैं. Why? For storing the information. Why? For storing the information. Okay. XML is a cross-platform, hardware and software independent text-based markup language. Okay, which enables you to store data in structure format by using meaningful text. Okay, see. Okay, XML is a cross-platform, hardware and software independent text-based markup language which enables you to store data in structured format by using meaningful text. XML stores structured data in XML documents that are similar to database. Okay, XML stores structured data in XML documents that are similar to database. मतलब जैसे हम लोग database में information store करते, same information we can store in XML also. Okay, but unlike database, XML document store data in form of plain text. Okay, वो plain text में data store करेगा. मैंने आपको बोला जैसे हम लोग database में we are storing data in table format में we are storing data ना, but in XML में हम लोग data store कर सकते हैं, but कैसे? Plain text, ऐसे normal text which can be used across platforms. मतलब any platforms can understand, any platforms can read the data from the XML database. Okay, so this is the main things that you have to remember about the XML. This is the basic things regarding XML. Okay, ये basic है. I think in Java में भी I think आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, I don't know. But every platform understand the XML data. Okay, if you want to pass data from one platform to another platform. Okay, so XML is the best thing. Because database जो है, database क्या करना पड़ता है, table and some connectivity we have to do. Okay, थोड़ा सा उसका अलग है, तो एवरी लैंग्वेज के लिए अलग ऑप्शंस है फॉर कनेक्टिंग द डेटाबेस. बट XML जो है डेटा जो कंटेन करता है वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा कंटेन करता है. सो एनी प्लेटफॉर्म कैन अंडरस्टैंड दैट डेटा. ओके, इन XML डॉक्यूमेंट यू स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बाय क्रिएटिंग द DTD और XML स्कीमा. ओके, यू हैव टू स्पेसिफाई. जैसे आप HTML में लिखते थे ना, सबसे पहले स्टार्ट करते थे डॉक टाइप. Okay, doc type definition. Okay, the document type definition. So that is the same hai. You specify the structure of data by creating the doc type definition, document type definition, or an XML schema. Okay, when you include DTD in XML document, the software checks the structure of XML documents. Okay, अगर आप specify कोई use कर रहे हो,
ओके आप स्पेसिफाई कोई और यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो उसको यू कैन चेक. दिस प्रोसेस ऑफ चेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वैलिडेटिंग. ओके, see the following code define the structure of XML document that will store the data related the books. Okay, if you want to store the data of the books का कोई data store करना है, तो student का कोई data store करना है, तो how you will store in XML? तो XML में store करने के लिए you have to write code like this. Okay, तो इसमें कोई आपको याद नहीं रखना है, ठीक है. जैसे इन द SQL में you have to write select query for displaying data, या तो insert करने के लिए insert particular को वो याद रखना था, ठीक है. बट इसमें ऐसे नहीं है, यू कैन जस्ट आपको ऊपर वर्जन स्पेसिफाई करना है. डॉटनेट में तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही आता है, तो आपको जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है. तो यू कैन क्रिएट योर ओन टैग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. आप आपके हिसाब से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है आप स्टोर कर सकते हो. आप जो टैग्स जो है, दिस इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. ओके, अगेन जैसे HTML टैग बेस्ड है, वैसे सेम दिस इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज. बट HTML में प्री डिफाइंड टैग्स है, इसमें वी कैन क्रिएट अवर ओन टैग्स. हम लोग हमारे टैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं. तो इन्होंने से बुक्स बना एक टैग, मेन टैग क्रिएट किया है विद इन बुक्स. तो बुक्स का जो है दैट आईडी, हाँ बुक्स आईडी स्टोर करे, उसका टाइटल स्टोर करे, उसका प्राइस स्टोर करे, ठीक है. देन ऑथर, ठीक है, ऑथर स्टोर करे, तो ऑथर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ओके, देन फर्स्ट बुक कंप्लीट. द सेकंड आपको सेकंड बुक का डेटा स्टोर करना है, तो यू कैन स्टोर लाइक दिस. ओके, तो यू कैन क्रिएट योर ओन टैग्स. आप अपने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें फॉर्मेटिंग मतलब प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है. ओके, एंड यस जो टैग स्टार्ट करोगे, एवरी स्टार्टिंग टैग्स है क्लोजिंग टैग्स. ओके, yes. ओके, तो यू कैन सी हियर द बुक्स, द टैग्स है उसमें BID1 डिफाइन किया है, मतलब बुक आईडी, टाइटल, प्राइस, ठीक है. तो एवरी टैग हैज क्लोजिंग टैग्स. ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो टैग्स आप ओपन करोगे उसको क्लोज करना है. जो इनर टैग ओपन किया था उसको पहले क्लोज करना है, देन आउटर टैग आप क्लोज करोगे. जो HTML में आप टैग्स क्लोजिंग स्टार्टिंग का कंसेप्ट इज सेम. ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? यू कैन क्रिएट योर ओन टैग्स. आपको जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, यू कैन स्टोर. स्टूडेंट रिलेटेड कोई डेटा स्टोर करना है तो आपको वैसे लिखना पड़ेगा. ओके, जो डेटा है दैट विल बी स्टोर इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है. दिस इज द सेम, ऐसे ही डेटा स्टोर होगा, ठीक है. प्लेन टेक्स्ट मतलब नॉर्मल जो टेक्स्ट है, वैसे हमारा डेटा क्या है, स्टोर होता है प्लेन टेक्स्ट में. ओके, यस. The main classes working with XML data are as follow. Okay, these are the main classes. Okay, for एक बार हमने डेटा तो स्टोर कर दिया, ठीक है. वी हैव स्टोर द डेटा, हमने ये डेटा स्टोर कर दिया. नाउ ये डेटा को रीड करवाना है, या तो ये डेटा को राइट करवाना है, तो कोई भी चेंजेस इफ यू वांट टू डू विद इन द एप्लीकेशन, को एप्लीकेशन में, ठीक है. तो दैट हैज द डिफरेंट क्लासेस. ओके, जैसे इनपुट क्लास है, आउटपुट क्लासेस है, वैसे ही रीड करने के लिए वी हैव द XML टेक्स्ट रीडर. ओके, दिस आर द बाय डिफॉल्ट क्लासेस है इन द .NET फ्रेमवर्क में, ठीक है. रेडीमेड क्लास जैसे कनेक्शन क्लासेस रेडीमेड. ओके, कमांड क्लास इन डेटाबेस में भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा, हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस में हमने. SQL क्लास रेडीमेड है, कमांड क्लास रेडीमेड है. जस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड वी आर यूजिंग दैट. ओके, तो सेम वैसे ही, ओके सेम वैसे ही XML के लिए भी .NET सपोर्टिंग XML. तो .NEट के पास XML को रीड करने के लिए, XML को राइट करने के डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है. ओके, तो दिस आर द क्लासेस. द फर्स्ट इज XML टेक्स्ट रीडर. Okay, XML text reader class is the implementation of XML reader. It provides a fast performant parser. Okay, it enforces the rules that XML must be well formed. Okay, क्या क्या function perform करता है? See, yes. For reading the class, okay, for reading the XML data, मैं program दिखा दूँ. There is one program कि how to read XML. See यहाँ पे है ASPX में कैसा कोडिंग करना है. Okay, for reading the data, okay, reading data के लिए we have the XML text reader. What we have? XML text reader, ठीक है. तो ये सब functions उसका दिया हुआ है कि checks the correct information of document type notes, check the correct formation of entities for notes, ठीक है. इसको आपको इतना नहीं समझ में आएगा. Then second is XML text writer. I will show you the program. मैं आपको program दिखाऊंगी, then you will understand. For write, okay, if you want to write, okay, then XML text writer class is there. जैसे connection के लिए class है, command के लिए class है, same वैसे XML text. XML if you want to write through the .NET, okay, आपको .NET through उसमें read करना है, write करना है, तो XML text writer.
इन डेटाबेस में हमने इन द सेमेस्टर थर्ड वी हैव लर्न द डेटाबेस सब्जेक्ट. तो व्हाट वी हैव डन कि वी डायरेक्टली ओपन द एसक्यूएल सॉफ्टवेयर. ओके, माय एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हमने यूज किया था, उसमें सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट क्वेरी लिखा था. बट वही इफ वी वांट टू एक्सेस आवर डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस विद आवर डॉटनेट एप्लीकेशंस, तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू यूज कनेक्टिविटी. ओके, कनेक्शन एडू डॉटनेट हमको कंसेप्ट यूज करना पड़ता है. तो फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस थ्रू द अवर वेब एप्लीकेशन वी हैव टू use the ADO.NET जो credit classes है, SQL class है, sorry SQL connection है, SQL command है, data adapter है, that we have to use. So same thing, XML, if you want to XML, you want to use XML data within the ASP.NET, ठीक है, ASP.NET में उसको use करो XML को, तो you have to use these classes for reading, for writing. Okay, ये classes आपको use करना पड़ेगा. You have to create object of these classes and then you can use that. Okay, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम ने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाया है जिसमें डायरेक्टली हम लोग टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट ओनली वी आर यूजिंग द एक्सएमएल. हम लोग एक्सएमएल डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग क्या कर सकेंगे, जो सिंपल मैंने प्रोग्राम दिखाया यूजिंग टैग्स, हम लोग उसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है. बट आप वही एक्सएमएल को इफ यू वांट टू यूज विद द डॉटनेट के साथ, अंडर विद इन द डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ हमको अगर उसको यूज करना है, ठीक है, विद इन डॉटनेट फ्रेमवर्क में हमको उसको यूज करना है, तो वी हैव टू यूज दिस क्लासेस एंड दिस क्लासेस आर सपोर्टेड बाय द डॉटनेट फ्रेमवर्क. ओके, XML टेक्स्ट रीडर, XML राइटर, ओके, XML डॉक्यूमेंट, ओके, देन XML डेटा डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है. This class allows structured data to be stored and manipulated through the relational data set. Okay, अगर आप data set use करके करो, then you have to use XML document. Okay, जैसे in the database में हमने with data reader connected database किया and disconnected किया. Okay, if you want to use disconnected आपको करना है, ठीक है, data set use करना है, तो you have to use this class XML data document. Okay, then XML node reader. Okay, XML node reader. This class has ability to read XML डॉक्यूमेंट सब ट्री. ओके, फॉर एग्जांपल सब बुक है तो उसमें बुक आईडी है. ओके, देन उसमें टाइटल है, देन उसमें ऑथर है, तो ऑथर में अगेन ऑथर आईडी, अगेन ऑथर नेम. तो जो सब नोड्स है, सब नोड्स आपको रीड करना है. ओके, तो यू कैन यूज एक्सएमएल नोड रीडर. ओके, यू कैन सी हियर, ठीक है, बुक्स, तो बुक्स में बुक है, टाइटल है, प्राइस है, उसमें ऑथर है, एंड ऑथर में फर्स्ट नेम लास्ट नेम. तो ये बुक्स में ऑथर, ऑथर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ओके, तो ये क्या हो गया, सब नोड हो गया. तो इफ यू वांट टू रीड दी सब नोड्स, तो सब नोड आपको रीड करना है या तो राइट करना है. तो रीड करने के लिए एक्सएमएल नोड रीडर है. कौन सा क्लास है, एक्सएमएल नोड रीडर क्लास. ओके, दिस ऑल क्लास आर रेडी. ओके, दिस आर प्रोवाइडेड बाय द डॉटनेट फ्रेमवर्क. ओके, डॉक्यूमेंट नेविगेटर. ओके, दिस आर द क्लासेस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे क्लासेस है. ओके, ऑल आर द क्लासेस. एक्सएमएल टेक्स्ट रीडर, एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, okay, XML data document, okay, XML node reader, document navigator. This class enables to navigate XML document represented by XML document class. Okay, navigate, अगर आपको navigate करना है, okay, if you want to navigate a document from one platform to another platform, so you have to use XML navigate, document navigator. Okay, okay, now XML with data set. Okay, XML with data set. Okay, a data set can also be used with data. Okay, XML डेटा के साथ हम लोग डेटा सेट यूज कर सकते हैं. इसके पहले जो हमने यूज किया था डेटा सेट, वो किसके साथ किया था, SQL सर्वर, SQL डेटाबेस के साथ वी हैव सेम. ओके, इन पहले हमने डेटा सेट बनाया, डेटा सेट को फिल किया. फिल करने के लिए कौन सा मेथड था, एडेप्टर का डॉट फिल मेथड इज देयर. ओके, यूजिंग एडेप्टर का फिल मेथड से वी कैन फिल द डेटा सेट. ठीक है, वो सब हमने SQL के साथ किया. बट आप लोग डेटा सेट को यूज कर सकते हो विद XML डेटा के साथ भी. Okay, the following examples show how to read XML document into the data set. Okay, जो XML document हमने बनाया, जो XML हमने डेटा स्टोर किया, उसको कैसे रीड करना है डेटा सेट में. Okay, so this is some example है. आपको basic, I will ask you basic questions regarding XML. What is XML? What is the full form of XML? Okay, what is the use of XML? Okay, which are the classes are there for the XML? Okay, basics we will learn. हम लोग जो basics है, that basics we will learn regarding the XML. Okay, reading XML document into the data set. How to read? तो उन्होंने दिया हुआ है one example. XML file directly can be read from the hard drive into the data set by using the read XML. कौन सा method से, read XML method of data set. Okay, एक मिनट, ये syntax is wrong है. Okay,
Okay, XML file directly can be read from the hard drive into the dataset by using the read XML method of dataset. Dataset का कौन सा method है? Read XML. All are the methods available. For example, उन्होंने एक XML file है. Okay, it is a ready-made file बना हुआ है. If you want to make your XML file, तो what you will make? How you will make in the ASP.NET? तो add new item में जाओ, select XML file. कौन सा select करना है? XML file select करना है. We have already used the XML file in the ASP.NET in the unit 2 or 3. कौन से कंट्रोल के लिए हमने XML फाइल यूज किया था, याद है किसी को? For which control we have used the XML file, students? Yes, XML फाइल हमने यूज किया था ना, कौन से कंट्रोल में यूज किया था? In which control we required the XML फाइल? कौन से कंट्रोल में हमको XML फाइल यूज करने की जरूरत पड़ी? यस, याद है किसी को? जो हमने प्रैक्टिकल्स किया, ठीक है, यूनिट 2 में जो कंट्रोल्स हम लोगों ने पढ़ा, कोई एक तो कंट्रोल है जिसमें वी रिक्वायर्ड दी XML फाइल. एनीवन कैन टेल? यस, नशरा, शाहजाद, कोई बता सकता है? कीर्ति, for which control we have to use XML file? This question I will ask in MCQ also. Yes, students. कौन से कंट्रोल के लिए हमने यूज किया था? नहीं याद आ रहा है? ओके, हम लोगों ने ओके एड रोटेटर के लिए हमने यूज किया था, याद है? फॉर एडिंग दी इमेजेस, एडवर्टाइज ऐड करने के लिए हमने एडवर्टाइज किस में ऐड किया था? XML फाइल में ऐड किया था. देन वो XML फाइल को हमने किस में सेट किया था? एड रोटेटर का जो प्रॉपर्टीज है, एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टीज, हमने वो XML फाइल अटैच किया था. तो फॉर यूजिंग दी एड रोटेटर, ठीक है, एड रोटेटर यूज करने के लिए, एड रोटेटर में व्हाट इज द यूज ऑफ एड रोटेटर? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द यूज ऑफ एड रोटेटर? क्या यूज है एड रोटेटर कंट्रोल का? What is the use of add rotator control? For advertisement. Okay, for advertisement. आपको if you want to display advertisement, okay, in your applications या तो अपने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी वेबसाइट्स बनाया, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो you can use add rotator control. Yes, see students, most of the students did not attend the lectures regularly. Okay, most of the students attend one lecture, then after 2 days 3 days again they are attending, so there is no meaning, उसका कोई meaning नहीं है. ठीक है, this is a practical subject I told you at the first day of semester. ये practical subject है, you have to attend the lectures regularly. If you don't have any system नहीं है तो ठीक है, but you have to attend lectures. आप उसको देखोगे जो practicals हमने किया उसको कैसे perform करना. अगर आप उसका notes बनाती, if you make some notes, you have note down some steps, तो आपको एटलीस्ट समझ में तो आता क्या करना है क्या नहीं. Now you are the blank. अगर वाइवा, सीरियसली आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, अगर इफ यू विल नॉट गिव एनी आंसर इन वाइवा प्रैक्टिकल्स, तो मैं मार्क्स इस बार नहीं देने वाली. ओके, बिकॉज अभी तक हो गया. नाउ इन दी टीवाई यू हैव सम नॉलेज ना रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स. ऐसे ही आ गए वाइवा में कुछ भी बोला, आई विल नॉट गिव मार्क्स, मैं मार्क्स नहीं दूंगी. प्लीज कम विद द प्रिपरेशन. अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी टाइम गया नहीं. योर एग्जाम विल बी आई थिंक इन नवंबर मंथ में होगा, आफ्टर द दिवाली. ओके, तो आपके पास बहुत टाइम है. मैंने आपको बोला यू हैव टू राइट असाइनमेंट क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल राइट द असाइनमेंट, तो यू विल रिवाइज कि ये हम लोगों ने क्या पढ़ा. मैंने आपको थियरी लिखने के लिए नहीं बोला, जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू के फॉर एवरी क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली है, कंट्रोल्स है, तो हर एक कंट्रोल्स का सिंटैक्स, सम 4 to 5 प्रॉपर्टीज एंड उसका स्मॉल एग्जाम्पल. मैंने आपको ऐसे वे में लिखने के लिए बोला. मैंने आपको कभी ऐसे नहीं बोला कि मुझे पेजेस भर के लिख के दो. आई नेवर टोल्ड यू. मैंने सामने से बोला है कि जस्ट राइट द मेन कंसेप्ट. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो भी आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया. तो अगर आप if you will not able to give the answer in the viva, then I will not give any single mark. Student please, मैं फेल कर दूंगी. कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में वापस प्रैक्टिकल वाइवा के लिए आना, प्रैक्टिकल के लिए आना. मैं भी ऐसे पास नहीं करने वाली. ओके,
तो प्लीज बी सीरियस, अभी भी टाइम है। जो आगे के जो चैप्टर्स थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो बेसिक है। आप अगर इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो आपको बेसिक वही पूछेंगे। अगर आपने इंटरव्यू जो उनका भी स्टेप्स रहता है, पहले आपका रिटर्न होता है, अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया जैसे जैसे, चलो देन सेकंड आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे, तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए भी आपको वही बेसिक ही पूछेंगे जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये कॉमन ही आपको पूछेंगे। वाई? बिकॉज यू आर इन ग्रेजुएशन लेवल, आप अभी फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को यही क्वेश्चन पूछते जो मैं आपको पूछ रही हूँ प्रैक्टिकल्स में। ओके, तो प्लीज बी सीरियस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स। ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स थियरी है तो थियरी एट मोमेंट पे पढ़ के कर लोगे, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल। कितना क्वेश्चंस इसमें से निकल सकता है, यू हैव नो आइडिया। एवरी टॉपिक में से आई कैन आस्क दी 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे ही निकल जाएंगे हर एक क्वेश्चंस के लिए। वैलिडेशन है, विच आर द वैलिडेशंस कंट्रोल्स, हर एक कंट्रोल के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करना है, क्या करना है, एटलीस्ट यू शुड नो स्टेप्स ना। स्टेप्स तो पता होना चाहिए। जब सिस्टम होगा आपके पास अवेलेबल तब आप कर लेना। आप लोग ऐसे जब वाइवा में अगर ऐसे आंसर दिया, मैम वी डोंट हैव सिस्टम, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया बट मैंने तो आपको प्रैक्टिकल करवाया है ना। ओके, आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया बट मैंने आपको हर एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो भी न्यू कंसेप्ट है दैट आई रन यू ना इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, मैंने रन किया हुआ है हर एक प्रैक्टिकल्स, इवन डेटाबेस का भी कनेक्टिविटी रन करके दिखाया। यस और नो, जो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हैं, मैंने हर एक प्रैक्टिकल्स, हर एक जो भी न्यू कंसेप्ट है मैंने रन करके दिखाया है कि नहीं? स्टूडेंट्स? Yes, yes. हाँ, ओके। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। ओके, तो यू शुड कम विद द प्रिपरेशन एट द टाइम ऑफ वाइवा। स्टूडेंट्स मैं नहीं अलाउ करूंगी, ठीक है? मुझे ये रीजन चाहिए नहीं कि मैम हमारे पास सिस्टम नहीं है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास सिस्टम नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, बट जो मैंने आपको करवाया एटलीस्ट वो स्टेप्स तो नोट डाउन कर सकते हो, आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। अगर आई विल आस्क कि हाउ टू यूज यूजर कंट्रोल्स, ओके, आप प्रैक्टिकल आपने नहीं किया बट स्टेप्स आप यू कैन रिमेम्बर द स्टेप्स ना, कि अगर यूजर कंट्रोल है तो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजर कंट्रोल, उसको मैम ने पहले कौन सा फाइल लिया, फिर क्या किया, कौन से फाइल में क्या चेंजेस किया, स्टेप्स तो यू कैन से ना टू मेक गिव द आंसर एज यस मैम ऐसे ऐसे हम लोगों ने किया, तो आई कैन अंडरस्टैंड। चलो कि आपको कुछ तो समझ में आ रहा है। लेबल कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट बॉक्स है, विच आर दी लिस्ट कंट्रोल्स, उसमें कौन सा प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर सकते हैं, वो चीज में क्या क्या कर सकते हैं। कैलेंडर कंट्रोल है, तो कैलेंडर कंट्रोल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम लोग कैलेंडर में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सब तो अब यू कैन टेल। ओके, यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस इन दिस वे। हाँ, बट अगर ऐसे मुझे बोला कि मैम हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमने परफॉर्म नहीं किया, दैट इज आई विल नॉट कंसिडर। ओके, तो प्लीज जो बेसिक है, जो नॉर्मल मतलब है उसके बारे में, कंट्रोल्स का मेन प्रॉपर्टीज, उसका यूज एंड स्टेप्स के हम लोगों ने कैसे किया। एड रोटेटर है, तो एड रोटेटर के लिए मैं आपको कोडिंग नहीं पूछूंगी आपने क्या कोडिंग क्या लिखा है। आई विल आस्क हाउ टू यूज एड रोटेटर कंट्रोल, हाउ टू डिस्प्ले इमेजेस, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दी स्टेप्स टू मी कि मैम पहले हमको एड रोटेटर कंट्रोल के लिए वी हैव टू एड एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल हमने ऐड किया, तो एक्सएमएल फाइल में जो जो भी इमेजेस हमको चाहिए वो इमेजेस का इन्फॉर्मेशन हमने एक्सएमएल टैग में लिखा। देन एक एड कंट्रोल वी हैव टेकन, एंड देन वो कंट्रोल का एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर्टी में हमने वो एक्सएमएल फाइल सेट कर दिया। तो दिस आर दी स्टेप्स, ये स्टेप्स है, इतना तो आप याद रख सकते हो ना। ओके, ऐसे तो है नहीं कि आप पूरा ब्लैंक है, मैं आपको थियरी पढ़ा रही हूँ, हर एक चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यस ऐसे ऐसे ये स्टेप्स परफॉर्म होता है। ओके, तो जब मैंने करवाया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि प्लीज नोट डाउन दी स्टेप्स, नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, तो जिसने किया है वो अच्छी बात है, एंड नहीं किया तो प्लीज दे स्टार्टिंग रीडिंग। ओके, मैंने आपको लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ उसमें भी अटैच मतलब उसमें अपलोड किया हुआ है। ओके, कल तक 20 तक सारे लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब में। मैंने देखा ज्यादा व्यूज है नहीं, कोई देखता ही नहीं स्टूडेंट्स। ओके, वी आर डूइंग स्टूडेंट फॉर योर ठीक है, आपके लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको करते हैं। ओके, इससे हमको नहीं फायदा है, द बेनिफिट इज फॉर यू। ओके, तो प्लीज मेरा इंटेंशन एक ही है कि व्हेन यू विल पास आउट, ठीक है, जब आप पास आउट हो जाओगे तो आपका दिमाग में ब्लैंक नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसा कुछ तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यू हैव दी मेन कंसेप्ट जो है दैट आपको पता होना चाहिए। डॉट नेट अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई बोलेगा यस डॉट नेट में वैकेंसी है, तो आप एंड मोमेंट पे जाके यस हाँ हमने डॉट नेट पढ़ा, अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछे कंपनी तो यू कैन गिव द आंसर। ओके, कि यस ऐसा ऐसा है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं।
ओके तो ब्लैंक ब्लैंक नहीं, कोई भी लैंग्वेज, ओके एनी लैंग्वेज है तो कोई भी सब्जेक्ट में ब्लैंक नहीं है। यू हैव दी सब्जेक्ट, आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ रहता है, फुल लेक्चर्स रहते हैं, आप लोग को मैम लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। ओके तो अगर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो कोई रीजन की वजह से, तो आफ्टर दी लेक्चर्स या तो जब भी आप टाइम हो तब वो लेक्चर्स का वीडियो लेक्चर्स यू कैन सी ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो प्लीज दिस इज द लास्ट ईयर, ठीक है, अभी आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो अभी से एक्टिव हो जाओ जो स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है वो। ओके चलो यस। तो दिस इज वन स्मॉल प्रोग्राम उन्होंने दिया है, रीडिंग द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इनटू डेटा सेट। नाउ अभी जिसको डेटा सेट पता ही नहीं है, जिन्होंने मेरा लेक्चर्स अटेंड किया ही नहीं है लास्ट लेक्चर्स, व्हाट इज डेटा सेट, तो आपको क्या समझ में आएगा? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लेक्चर्स रोज अटेंड करो, दिस इज द रीजन। ओके अगर नहीं कोई रीजन से कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। ओके बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, अभी मैं आपको यहाँ तो हियर वी आर यूजिंग द वर्ड डेटा सेट, तभी मैं आपको पूरा डेटा सेट तो एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकती। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज डेटा सेट विद द एग्जांपल। हमने डेटा सेट से डेटा भी डिस्प्ले करवाया। ओके तो प्लीज reading an XML document into data set. Now, how to read? Okay, so this small example is given to you. See, एक XML file उन लोगों ने बनाया. This is a simple XML file. In this XML file, they have stored the item information. Okay, item का data they are storing. Items. Okay, item is a one tag. Then food items. Okay, उसमें food toast उसका price. ठीक है. Then second food items noodles. ठीक है, उसका price उसका information store किया है. तो यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एट योर सेल्फ, मतलब आपको जो से भी करना, आपको कोई उसके लिए फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, बस उतना याद रखना है कि जो टैग्स ओपन करोगे उसको क्लोज करना। तो दिस इज सिंपल एक्सएमएल फाइल। तो हाउ टू क्रिएट दिस एक्सएमएल फाइल इन ASP.NET? जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट sorry, add new item. You have to go add new item and select the XML फाइल। जैसे XML फाइल सिलेक्ट करोगे तो आपका पूरा ब्लैंक ओपन हो जाएगा, जैसे हमने एड रोटेटर के टाइम पे किया था, सेम वही एक्सएमएल फाइल आपको ओपन करना है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल ओपन करोगे तो यू हैव टू राइट दिस कोड, कोई भी कोड। ओके जो भी डेटा आपको स्टोर करना है, जस्ट आप उसको डेटा स्टोर करो उसमें। जैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करके टेबल्स में डायरेक्टली डेटा ऐड करे थे, वैसे आप लोग डायरेक्टली एक्सएमएल फाइल ऐड करोगे डॉटनेट में और ये कोड लिखोगे, मतलब ये डेटा स्टोर करोगे, जो भी डेटा आपको स्टोर करना, स्टूडेंट से रिलेटेड है या कोई भी डेटा। ठीक है, देन ओके देन अभी आपको जो डेटा आपने रीड मतलब स्टोर किया है एक्सएमएल फाइल में, वो डेटा को इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑन दी वेब पेज, ओके आपको वेब पेज उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो आपको उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यू हैव टू यूज रीड एक्सएमएल क्लास। कौन सा क्लास यूज करना है? रीड एक्सएमएल क्लास। तो आप अगेन आइटम जो है वो रीड करवा सकते हो, डेटा सेट से भी करवा सकते हो और डायरेक्टली भी करवा सकते हो। जैसे हमने फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस से हमने डायरेक्ट डेटाबेस एंड डिसकनेक्टेड यूज किया था। ठीक है, तो सेम थिंग है। तो यहाँ पे हम लोग यूजिंग डेटा सेट से करें। ओके तो विच आपको एक वेब पेज लेना है। ओके वी हैव टू टेक वन वेब पेज ASPX, क्योंकि उसमें ही हम लोग डेटा डिस्प्ले करवाएंगे। वी आर यूजिंग वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसको नेम दे दिया है, दिस इज ओनली फाइल नेम। ठीक है, दिस इज अ फाइल नेम, रीड एक्सएमएल आइटम्स इज अ फाइल नेम। ओके डॉट एक्सटेंशन, दिस इज द वेब पेज, ये वेब पेज है। ठीक है, इन दैट वेब पेज यू हैव टू ऐड वन नेम स्पेस, आपको नेम स्पेस ऐड करना है। ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा, कौन सा नेम स्पेस ऐड करना है? सिस्टम डॉट डेटा। ओके सिस्टम डॉट डेटा, क्लियर? तो ऐड करो। ठीक है, देन यस स्टूडेंट्स दिस इज अ वीबी में है ये। ओके बीम मतलब ये वीबी लैंग्वेज उन्होंने यूज किया। वी विल यूज दी सी शार्प लैंग्वेज, हम लोग सी शार्प लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट डेटा सेट क्रिएट करना है। तो हाउ टू क्रिएट डेटा सेट ds ओके इक्वल टू न्यू डेटा सेट। दिस इज अ वीबी का, ये आई थिंक बाय मिस्टेक नहीं, मेरा यहाँ पे मैंने वीबी ले लिया है। दिस इज अ VB.NET, VB.NET का है। सो हियर यहाँ पे पेज लोड ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग सी शार्प में कंसीडर करेंगे तो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। ओके इन द यू नो इन द .NET वी कैन यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ये जो लैंग्वेज उन्होंने बना यूज किया दैट इज अ VB लैंग्वेज। ओके VB.NET है। तो हम लोग को सेम वही प्लेटफॉर्म में करना है। ठीक है, .NET में ही करना है, बस सी शार्प लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। तो सी शार्प लैंग्वेज से यूज करेंगे तो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। तो पहले यू हैव टू डिक्लेयर द डेटा सेट। ओके आप क्या करोगे? डेटा सेट डिक्लेयर करोगे। ठीक है, देन डेटा सेट को आपको क्या करना है? फिल करना है। क्या फिल करना है? जो एक्सएमएल में आइटम्स है वो। ओके तो एक्सएमएल में आइटम्स है उसको फिल करना है। तो जस्ट आपको क्या लिखना है? दिस वन। ओके रीड एक्सएमएल एंड आइटम्स मैप पाथ items.xml, जो XML फाइल है उसको आपको क्या करना है? डेटा सेट में रीड करवाना है। तो यू हैव टू यूज दिस कंसेप्ट। ओके कोई बात नहीं,
कल मैं आपको जो भी सॉरी C# का कोड है उससे समझाऊंगी। सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। डेटा सेट को यहाँ पे रीड करवाना है, अगर हम लोग हमारा लिखे C# का अगर हम लोग लिखे, ओके, तो हाउ टू राइट द डेटा सेट ds इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, ठीक है। ये हम हो गया C# का हो गया सिंटैक्स। देन उसको फिल करना है, ओके, डेटा सेट को क्या करना है, फिल करना है। तो ds, ओके, डॉट, हम लोग क्या करेंगे, वी विल कॉपी दिस वन, ओके, फॉर दी, ओके, फिर हम लोग इसको निकाल देंगे क्योंकि ये इसकी जरूरत नहीं है, ओके। फिर ये डेटा सेट भी नॉट रिक्वायर्ड, ओके, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके, ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे। एंड जो नेम स्पेस है, ठीक है, हम लोग सिस्टम डॉट नेम स्पेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट नेम स्पेस, व्हाट वी विल राइट, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस, ओके। तो ये आपका हो गया C# का कोड, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे ग्रिड व्यू हम लोग लिखेंगे, ओके, ग्रिड व्यू हम लोग लिखेंगे, तो ग्रिड व्यू 1, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू ds, ओके। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, ठीक है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। तो जैसे हम लोगों ने SQL डेटाबेस में से डेटा रिटर्न करवाया, वैसे हम लोग किसमें से करवाएंगे, आपका XML फाइल में से। XML फाइल किसमें से करवाना है, XML फाइल, ओनली दिस इज अ चेंज, इतना ही चेंज है, ओके। यहाँ वहाँ पे हम लोग को पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग करना पड़ता था, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद फिर हमको डेटा एडेप्टर वगैरह वो सब लिखना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको डेटा सेट क्रिएट करना है, अगर डेटा सेट से करे हो तो, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन यूज द XML रीड क्लास, ओके, ठीक है। तो अगेन टुमारो आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे एंड सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो नीड टू राइट दिस ऑल दिस थिंग, ओके। यहाँ पे उन्होंने यस, ओके, ये सब की जरूरत नहीं है। I will again explain the simple example C# language को मैं आपको example दिखाऊंगा, so you will not get confused, okay। So this is a simple coding है, ठीक है, .cs पेज का, कौन से पेज का, .cs पेज का, for displaying the data items from the XML फाइल। कहाँ से हमने किया है, XML फाइल से किया है, कहाँ से किया है,